In last video, we have seen the classification, nomenclature, and methods of preparation of alkyl halide. Now we are going to focus on physical properties of alkyl halides. So number 1, nature of intermolecular forces. Number 2, boiling point, and number 3, solubility. Now about the nature of intermolecular forces. In alkyl halide, the bond between carbon and halogen, this bond is a polar bond because here partial positive delta plus and delta minus charges are developed due to the electronegativity difference between carbon and halogen. Now halogen atom, size of halogen atom, that is it is increases from fluorine to iodine. So as size of halogen atom increases, the bond length between carbon and halogen will go on increases. So here bond length of alkyl fluoride is less than that of the alkyl fluoride, then alkyl bromide and alkyl iodide. So note down that point. बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है इसमें, इंक्रीज हो रही, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज. उसके बाद बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए, इसमें डिक्रीज होनी चाहिए. सो बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है इट विल गो ऑन डिक्रीजेस फ्रॉम alkyl fluoride to alkyl iodide. Similarly, bond enthalpy ये जो है ये भी क्या होगी, इसमें डिक्रीज होंगी. बॉन्ड एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेस. सो नोट डाउन दैट पॉइंट हियर. As size of halogen atom will go on increases from fluorine to iodine, then bond length जो है वो क्या हो रही है इसमें will go on increases, then bond strength क्या हो रही है इसमें डिक्रीज हो रही है, और बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो भी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है. Then second point, this is about the nature of intermolecular forces. Then next point जो है boiling point. Boiling point में यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, here I am taking alkyl halide and example of alkene. Here alkyl group is same. Suppose alkyl group is same, then boiling point of alkyl halide is high as compared to corresponding alkane. Why boiling point is high? Because here due to the high polarity and high molecular mass. So note down that point. Why alkyl halides are having greater boiling point? Due to the high polarity and due to the high molecular mass. Then similarly boiling point of alkyl fluoride again will go on increases from alkyl fluoride to alkyl iodide. ये भी पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है. बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है इसमें इंक्रीज हो रहा है. उसके बाद अनदर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सपोज CH3Br दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पे मैंने लिया C2H5Br. मीन्स एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस देयर बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस. इसमें मॉलिकुलर मास क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो मिथाइल ब्रोमाइड जो है उसका क्या रहेगा बॉइलिंग पॉइंट लेस रहेगा एज कम्पेयर टू इथाइल ब्रोमाइड. उसके बाद फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल का अगर एग्जांपल लेना है आपको, सपोज कंसिडरिंग दिस एग्जांपल CH3 CH2 एंड Cl. और दूसरा एग्जांपल जो है इसमें मैं यहाँ पे लिख रही CH3 CH3 और Cl. और you can take here I am telling about the branching. So here this example can be written in this way, CH2 Cl and here CH2 and Cl. So here this compound has no branches and this compound has a one branch. That is ये कौन सा है 1 2 3 4 कार्बन एटम मीन्स इट इज ए क्लोरोब्यूटेन, और ये जो है इट इज ए 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल
प्रोपेन। इसमें मॉलिकुलर फार्मूला कैसे है, सेम है, बट सो सच टाइप ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स मेल्टिंग पॉइंट जो है उसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। मीन्स एज नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट जो है उसमें क्या होता है, डिक्रीज होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसे रहेगा, ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू दैट कंपाउंड। बोथ आर दीज आर द आइसोमर्स, ये दोनों कैसे है, आइसोमर। और यू कैन राइट हियर another example of isomeric alcohol. So this is about the boiling point. So remember that point. Boiling point जो है हाई क्यों रहता है, ड्यू टू हाई पोलैरिटी एंड हाई मोलिकुलर मास। उसके बाद अल्किल फ्लोराइड से लेके अल्किल आयोडाइड तक बॉइलिंग पॉइंट जो विल गो ऑन इंक्रीजेस। उसके बाद एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड के लिए आपको कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना है, एज नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीजेस देयर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगा। इसका हाई और इसका कैसे रहेगा, लेस रहेगा। देन अबाउट द सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी में स्टिल अल्किल हैलाइड्स आर स्लाइटली पोलर। ये अल्किल हैलाइड्स पोलर है, आपको अभी बताया मैंने। स्टिल इट इज पोलर बट इट इज अनेबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो है फॉर्म नहीं करता है, सो दैट्स वाई अल्किल हैलाइड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर। वाटर में कैसे है, ये इनसोल्युबल है। वाटर में अगर इनसोल्युबल है तो ऑब्वियसली इट इज सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये हमने 11th में ऑलरेडी स्टडी किया है। इट इज द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स ऑफ द अल्किल हैलाइड। देन यहाँ पे सोलुबिलिटी अबाउट द अरील हैलाइड्स। अगेन अरील हैलाइड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर एंड सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड्स। इसके बाद का जो टॉपिक है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको, या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसके अंडर आपको वन बाय वन एक एक टर्म आपको मैं एक्सप्लेन करके बताती। फर्स्ट टर्म जो है प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, इसको शॉर्ट में आई कॉल प्लेन पोलराइज लाइट, दैट इज द पीपीएल। इसको शॉर्ट में क्या लिखूंगी मैं, पीपीएल। अभी ये प्लेन पोलराइज लाइट कैसे फॉर्म होता है, सपोज दिस इज द ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट। उसमें से क्या है, ये मोनोक्रोमेटिक लेयर। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, हैविंग सिंगल वेवलेंथ, हैविंग सिंगल वेवलेंथ। सो व्हेन मोनोक्रोमेटिक lambda is equal to single, monochromatic ray of light is passed through the Nichols prism। ये जो है ये कौन सा है, निकोल्स प्रिज्म। कनाडा बाल्सम से बड़े होता है, दिस इज नोन एज ए निकोल्स प्रिज्म। व्हेन मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू द निकोल्स प्रिज्म, देन इमर्जिंग लाइट, इसमें जो इमर्जिंग लाइट जो रहेगा, दिस इज नोन एज ए प्लेन पोलराइज लाइट। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो हाउ प्लेन पोलराइज लाइट इज फॉर्म, व्हेन मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू द निकोल्स प्रिज्म, देन इमर्जिंग लाइट इज नोन एज ए प्लेन पोलराइज लाइट। इसको आपको अगर प्रॉपरली डिफाइन करना है तो कैसे लिखेंगे, ए लाइट हुज वाइब्रेशंस आर रेस्ट्रिक्टेड इन ओनली वन प्लेन। इसके जो वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेशंस या फिर ऑसिलेशंस जो है, हैविंग ऑसिलेशंस इन वन प्लेन, इसके परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। उसके बाद सेकंड आपको डेफिनेशन या फिर सेकंड टर्म ध्यान में रखना है आपको, कायरल एटम। कायरल एटम का मीनिंग क्या होता है, ओल्ड सिलेबस में इसमें असिमेट्रिक, इट इज आल्सो नोन एज ए असिमेट्रिक कार्बन एटम। सपोज कंसिडर दिस एग्जाम्पल हियर, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। What is the name? Here this is the example of 2-chlorobutane. There are total 4 carbon atoms.
This is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3 and carbon number 4. Now carbon number 1 is attached by 3 hydrogen atoms and remaining this group. Carbon number 2 जो है it is attached with 1 CH3 group, then 1 hydrogen, 1 Cl and remaining this group it is written as C2H5. CH2 CH3 that is C2H5. So carbon atom which is attached by 4 different atoms or group of atoms is known as a chiral atom. और chiral atom जो है it is indicated by this such type of asterisk. So organic compound which contain at least one chiral atom it shows the optical activity phenomenon. तो ये आपको समझ में आया chiral atom के बारे में. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में chiral atom रहेगा एटलीस्ट 1, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी फिनोमिना शो करेंगे. उसके बाद थर्ड डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी. नाउ सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू द, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. नाउ व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू द solution of certain organic compound, then it rotates plane polarized light. ये plane polarized light को either clockwise direction या फिर anti clockwise direction अगर rotate करता है, then that compound is optically active. Clockwise means in this way and this is the anti clockwise. So how will you define optical activity? It is the phenomenon of certain or organic compound which rotate the plane polarized light either clockwise direction or anti-clockwise direction is known as optical activity. अभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम, डेक्स्ट्रो, डी या फिर इट इज इंडिकेटेड बाय प्लस. और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज, देन इट इज नोन एज ए लियो या फिर माइनस. सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी. और उसके बाद कौन सी ध्यान में रखने हैं आपको, लिवो रोटेटरी. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स clockwise direction are known as dextrorotatory compounds. CPDS means compounds. Similarly, organic compounds which rotate the plane polarized light towards the anti-clockwise direction are known as leo rotatory compounds. और इसका इंडिकेशन आपको ध्यान में रखना है, डेक्स्ट्रो इज इंडिकेटेड बाय डी या फिर प्लस और लियो का एल या फिर माइनस. देन अब नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेसिमिक मिक्सचर. रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर. रेसिमिक मिक्सचर ध्यान में रखना है आपको, बहुत बड़ा डेफिनेशन आई है ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में. इक्विमोलर, इक्विमोलर मीन्स इसमें 50% डेक्स्ट्रो रहेगा और 50% क्या रहेगा, लियो. सो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो रोटेटरी कंपाउंड्स इज नोन एज ए रेसिमिक मिक्सचर. और रेसिमिक मिक्सचर जो है ये ऑप्टिकली कैसे रहेगा, इनएक्टिव. ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा बिकॉज इट इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो. क्योंकि इसमें ऑप्टिकल रोटेशन जो है डेक्स्ट्रो जो है उसके जो है लियो क्या करेगा, ऑप्टिकल रोटेशन गेट्स कैंसल्ड बाय वन आइसोमर जो है उस वन आइसोमर के ऑप्टिकल रोटेशन दूसरे आइसोमर क्या करेंगे, ऑप्टिकली इसमें ये सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, ऑप्टिकली इट इज इनएक्टिव. ऑप्टिकल रोटेशन जो है इट इज गेट्स कैंसल्ड बाय वन फॉर्म जो है दूसरे फॉर्म को क्या करेगा, यहाँ पे कैंसिल करेगा, देयरफॉर इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन आपको इसमें अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी की ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में ध्यान में रखना है. इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स जो है दीज आर नथिंग बट द ऑप्टिकल आइसोमर्स. अभी ये जो पॉइंट है इनैंशियोमर्स का मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे, ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रही मैं. इनैंशियोमर की डेफिनेशन लास्ट में बताऊंगी. जैसे अभी
डेक्स्ट्रो लियो आइसोमर जो है, कौन सा एग्जांपल लिया हमने, 2-क्लोरोब्यूटेन का। तो ये जो है सपोज ये मिरर ये यहाँ पे लिया है मैंने, और ऑप्टिकल आइसोमर जो है 2-क्लोरोब्यूटेन के यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C2H5। पोजीशन आप कैसे भी ले सकते हैं इसमें। तो Cl जो यहाँ पे है तो यहाँ पे आना चाहिए मिरर इमेज में, और बाकी के एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो है वो एज इट इज़ रहेंगे यहाँ पे। तो ये जो है दिस आर द मिरर इमेज। कैसे है ये, नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसको हम डेक्स्ट्रो लियो भी बोल सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है, ये जो मिरर इमेज है ये कैसे है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। अभी इसकी डिटेल्स में आपको एग्जांपल लेके बताऊंगी। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। एग्जांपल अगर लेना है, सपोज मैंने यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल ले रही मैं। सपोज यहाँ पे मैंने बॉल रखा है, तो ये जो बॉल है उसकी मिरर इमेज में आपको जैसे कि वैसे मिलेंगी, यानी इसमें साइड जो है वो चेंज भी नहीं होगी। बॉल की जो इमेज है जैसे कि वैसे मिल रही है। सो सच टाइप ऑफ इमेज इज नोन एज ए सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। या फिर अनदर एग्जांपल अगर लेना है आपको, सपोज मैंने यहाँ पे ग्लास लिया है ये, तो ग्लास की इमेज जो है कैसे मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है। सो सच टाइप ऑफ इमेजेस आर कॉल्ड द सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अभी सुपर और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज में क्या डिफरेंस रहता है। ये मिरर हो गया, सपोज मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड रखा, तो ये मिरर में आपको कैसे दिखेगा, राइट हैंड दिखेगा। मीन्स साइड क्या होती है, उसमें चेंज होती है। सो जिसमें साइड चेंज होती है, सच टाइप ऑफ मिरर इमेज आर नोन एज ए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर आपका आईने के सामने खड़े हैं, तो पॉकेट अगर है तो आपको लेफ्ट हैंड में है, तो मिरर में कैसे दिखता है, राइट हैंड। सो सच टाइप ऑफ इमेजेस आर कॉल्ड द नॉन सुपर मिरर इमेज। आपका पॉइंट क्लियर हुआ, यहाँ पे आइडिया क्लियर हुई आपकी। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। चेयर का भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। चेयर जैसे आपने रखी है वैसे ही, जैसे रखी है वैसे ही मिरर में दिखेगी। फॉर एग्जांपल ये जो चेयर है, तो इसमें मिरर इमेज उसकी वैसे ही दिखेगी। सो दिस इज अगेन ए एग्जांपल ऑफ सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये जो इमेज है, ऑप्टिकल आइसोमर जो फॉर्म हुए हैं, ऑप्टिकल आइसोमर जो है डेक्स्ट्रो और लियो, ये कैसे रहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो इसमें आपको नेक्स्ट डेफिनेशन जो ध्यान में रखना है, नंबर 6, कौन सी ध्यान में रखना है, इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स मीन्स क्या है, दिस आर नथिंग बट द ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स ही है। आइसोमर्स तो हमने लास्ट ईयर स्टडी किया है। और इनैंशियोमर्स को अनदर नेम क्या है, इट इज आल्सो नोन एज ए इनैंशियोमॉर्फ्स। ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के लिए। इनैंशियोमॉर्फ्स और ऑप्टिकल एंटीपोड्स, इसके दो नाम है, दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है, ऑप्टिकल एंटीपोड्स। ओके, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे 2-क्लोरोब्यूटेन का ही एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है। अगेन देर आई एम टेकिंग अनदर सेकंड एग्जाम्पल विच शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी फिनोमिनन, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में आपको ये जो है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में जो कार्बन है, दिस कार्बन इज अगेन ए असिमेट्रिक कार्बन एटम। तो असिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो इसमें क्या होगा, दिस कंपाउंड अगेन शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी फिनोमेनन। मीन्स व्हेन पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट अगर हमने सॉल्यूशन लैक्टिक एसिड के थ्रू अगर हमने क्या किया, सॉल्यूशन ऑफ लैक्टिक एसिड से पास किया, तो क्या करेगा, ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी फिनोमेनन शो करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, it should contain at least one asymmetric carbon atom. Now I am taking third example, glucose C6H12O6। ये जो ग्लूकोज का फार्मूला है मैं यहाँ पे लिख रही, CHOH 4 टाइम्स, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रही CHOH 4 टाइम्स
CHOH और यहाँ पे क्या रहेगा CH2OH। अभी ग्लूकोज में क्या है, ये जो है दिस इज कार्बन नंबर, ये कार्बन, देन सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन एंड दिस इज फोर्थ। देयर आर 4 कायरल एटम लैक्टिक एसिड में और 2 क्लोरोब्यूटेन में एक ही कायरल एटम है, लेकिन इसमें क्या है देयर आर टोटल 4 कार्बन एटम। सो इट शोज द, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर जितने ज़्यादा रहेंगे उतने ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या रहेंगे उसके ज़्यादा रहेंगे। 2:4 मीन्स इट हैज़ ए 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने रहेंगे, सो 2:2 नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको यहाँ पर पावर लिखना है उसके करस्पॉन्डिंग। जैसे लैक्टिक एसिड में 2:1 वन कायरल एटम, सो इट हैज़ ओनली 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो ग्लूकोज में ये असिमेट्रिक कार्बन एटम या फिर कायरल एटम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे दिस कार्बन इज अटैच विथ हाइड्रोजन OH CHO एंड रिमेनिंग दिस ग्रुप, देयरफॉर दिस इज कायरल एटम। सिमिलरली सेकंड कार्बन एटम अगर आपको देखना है तो इसमें क्या है, it is attached with hydrogen OH this group and remaining this group. Similarly these are again the 2 chiral atom. So this is about the optical activity. समझ में आया सबको। और ये जो है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए फॉर्मूला है आपको, ये जितने भी रहेंगे ये आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव, ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया है, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर ऑफ ग्लूकोज आर फाउंड। तो इसमें आपको ये टोटल कितने हैं 16 आइसोमर्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, दैट इज द मेथड्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड। ये टॉपिक, ये जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।